Hello and welcome to our YouTube channel TMPS Online Classes. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a new video. Today we will discuss about the measurement of area, the density and the relative density of the substances. Now let me start the video. The measurement of area. We all know the area. The space occupied by an object is called area. तो एरिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं. एवरी डे we deal with the various objects such as pencil, rubber, sheet of paper and such many things. Okay, if we keep these objects on table, अब ये सारी चीज़ों को अगर आप टेबल पर रखते हैं तो आप क्या देखते हैं? ईच ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस. तो जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस, कोई ना कुछ सरफेस ऑक्यूपाई करेंगे, और जितना वो सरफेस ऑक्यूपाई करेंगे, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? एरिया होगा. ओके, if we are going to take some example of area of regular plane figures, the area of square, which is side into side, the area of rectangle, that is L into B, that is length into breadth, and the area of triangle, half into base into height. This is base and this is height. And the SI unit or the standard unit of area is square meter or meter square. How will you find the meter square is a unit? Then suppose it is a rectangle and it is the length, that is 3 meter, and it is the breadth, that is 2 meter. Okay, now finding the area, that is L into B, 3 meter into 2 meter, then 3 to just 6, m into m, that is m square. So 6 meter square is the area of rectangle. That's why we are talking about the standard unit, that is meter square is the SI unit of an area. If we talk about the sub multiple units of an area, in case we need to find the bigger area, suppose the piece of land or the big building or malls, in such cases the bigger unit or the multiple units should be used. Then we will here the two units, hectare and acre. 1 acre is equal to 4046.85 meter square, and 1 hectare is equal to 2.471 acres. When we talk about the hectare and the relationship between the hectare and meter square, then 1 hectare is equal to 100 into 100 meter, that is 1 hectare is equal to 100 into 100 meter, that is 10,000 meter square. Okay, when we talk about the area of much greater area, suppose the area of country and the area of the continents in earth, then square meter is a SI unit which we have to use. Then 1 kilometer into 1 kilometer is equal to 1000 into 1000 meter. Kilometer is changed into meter here. Then 10 to the power 6 meter square is the area of such bigger areas. When we talk about the area of very small objects like matchbox, books, pencil, okay, in such smaller units or sub multiple units would be used, that is centimeter square or the millimeter square. We know 1 square centimeter is the area of such smaller of substances. 1 centimeter into 1 centimeter, centimeter is changed into millimeter. Okay, then 10 into 10, 100 millimeter square. Now when we talk about the density, डेंसिटी को हम बोलते हैं घनत्व. तो डेंसिटी सिंपली ऐसे समझते हैं कि घनत्व का मतलब होता है घनापन. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड, तो सॉलिड आप लोगों ने मैटर पढ़ा है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, द 3 डिफरेंट मैटर्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस. व्हेन वी टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स इन सॉलिड, वी expresses at the particles or the molecules arranged in the solid are much closer to each other. यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पास पास होता है, इसलिए उसके पार्टिकल्स भी बहुत पास पास होते हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द लिक्विड, उसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द गैस, तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं. तो इट मीन्स कि डेंसिटी, घनत्व किसका ज़्यादा हुआ? सॉलिड का, जिसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, जिसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, बाउंडेड होते हैं, पैक्ड होते हैं टुगेदर, डेंसली पैक्ड होते हैं, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. देन डेंसिटी क्या है? द क्वांटिटी of matter or a mass contained in unit volume of a substance. पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस में कितना मास कंटेंट कर रही है, उस क्वांटिटी को शो किया जाता है डेंसिटी से. तो डेंसिटी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको डिनोट किया जाता है रो से. ये पी जैसा, ये एक ग्रीक लेटर है जिसको प्रोनाउंस हम करेंगे रो, RHO, रो. ठीक है. तो अब ये सोचिए कि वेदर द ऑब्जेक्ट में सिंक और फ्लोट
ऑन वाटर, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के हैवीनेस पर और लाइटनेस पर। यानी जो ऑब्जेक्ट वाटर से ज़्यादा भारी होगा वो सिंक कर जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट वाटर से हल्का होगा वो फ्लोट करेगा नेचुरली। सिंपली ऐसे लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, सपोज आपने एक स्टोन लिया, स्टोन को आपने वाटर में डिप किया तो वो क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। वहीं पे आप पेपर लेंगे और पेपर को आपने उस वाटर पे डाला तो वो फ्लोट करेगा, जो ये बताता है कि कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है। तो स्टोन हैवी है और पेपर आपका लाइट है। इट मीन्स कि द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की डेंसिटी, वाटर क्या है, लिक्विड है, और स्टोन क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो वाटर यानी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है। दैट्स वाई द सॉलिड और दैट स्टोन में सिंक इन द वाटर। ओके, तो सिंपली ऐसे देखना है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर वो सिंक कर जाएगा, और जिसकी हल्की होगी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो कीपिंग इन द व्यू ऑफ अबव फैक्ट्स, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसको कैसे समझे कि सपोज आपने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिए जिनका वॉल्यूम सेम है लेकिन मास अलग है। मास अलग होने का मतलब है कि एक भारी है एक हल्का है, ठीक है, एक भारी है एक हल्का, यानी कि उसकी डेंसिटी आपस में ज़्यादा है और एक कम है, ठीक है। तो सिंपली पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज़्यादा होगा वो हैवी होगा, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द यूनिट ऑफ अ डेंसिटी इज, हम कैसे कंप्यूट करेंगे, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और ये क्या है, अपॉन। देन केजी पर मीटर क्यूब इज़ द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, और इन स्मॉलर टर्म्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी एज वेल। नाउ हाउ विल यू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड हैवियर देन वाटर। आप उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे जो कि वाटर से हैवी है। एट फर्स्ट सपोज यू वांट टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन, तो वो जो हैवियर सॉलिड मैंने लिया है, सपोज वो एक स्टोन है और वो हैवी है देन वाटर, देन हाउ विल यू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ दैट स्टोन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिटरमाइन द मास ऑफ अ स्टोन। उस स्टोन का मास कितना है हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए। तो हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। हमने फिजिकल बैलेंस से उसको मास कंप्यूट कर लिया, सपोज उसका मास कैपिटल M है। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज दैट यू नीड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन। सिंपली डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास तो चलो पता चल गया। देन हाउ विल यू डिटरमाइन द वॉल्यूम हेयर, देन सिंपली वी नीड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ स्टोन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड। उसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहेंगे। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टेक्निक और मेथड को आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो हमको अब क्या फाइंड करना है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके लिए हमको सिलेंड्रिकल वेसल की ज़रूरत पड़ेगी, मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। मेजरिंग सिलेंडर में कुछ यूनिट्स दे रखी हैं जो कि उसके वाटर के लेवल को बताएगी, ठीक है। तो सिंपली हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया और उसको पार्शली वाटर से हमने थोड़ा सा वाटर उसमें डाल दिया, ठीक है, पोर कर दिया उसको। देन उसकी यूनिट हमने इनिशियल यूनिट फाइंड कर ली, तो वाटर लेवल कहाँ पे अभी इसमें 5 सेंटीमीटर क्यूब तक। तो वॉल्यूम विच इज़ V1, वॉल्यूम 1 को या इनिशियल रीडिंग हमारी क्या आई है, वो 5 सेंटीमीटर क्यूब आई है, तो उसको हमने नोट डाउन करके लिख दिया। अब हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड विच इज़ द स्टोन। तो हमको क्या करना है कि उस बीकर में हमने इनिशियल रीडिंग 5 सेंटीमीटर क्यूब ले ली। अब उसी बीकर में हमको डिप करना है, ठीक है, सिंक करना है वो स्टोन एक थ्रेड से टाई करके। हमने क्या देखा, वी डिटरमाइंड दैट जैसे ही हमने इसको सिंक किया इन द वाटर, उसका लेवल क्या होगा, 5 था, 5 से ऊपर चढ़ के वो कहाँ चला गया, लेवल चेंज हो गया, वो 9 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुँच गया, विच इज़ द second unit, okay, final unit. Then V2 is the final reading after dipping the stone inside the water. Then 9 सेंटीमीटर क्यूब इसकी V2 हो गई। Then water कितना डिस्प्लेस किया, यानी the change of the level of water after dipping the स्टोन इनटू द वाटर, ठीक है। तो जितना चेंज हुआ यूनिट में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन क्या होगा, आपकी फाइनल रीडिंग जो कि 9 सेंटीमीटर क्यूब थी माइनस
उसको डिप करने के पहली जो इनिशियल रीडिंग थी 5 थी, तो 9 - 5 वुड बी 4 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमने वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकाल लिया। अब हाउ विल यू फाइंड द डेंसिटी ऑफ दैट हैवियर स्टोन? सपोज वो जो स्टोन है उसकी डेंसिटी क्या है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टोन। ठीक है, अब मास हमने निकाला सपोज, एंड द मास इज गिवन यू 64 ग्राम। ओके, एंड व्हाट विल बी द volume? We need to find the volume here. Okay, then we note that the density is equal to mass per unit volume. Okay, mass आपको कितना दिया है 64 एंड वॉल्यूम कितना दिया है 0.8। वॉल्यूम आपको निकालना है, सॉरी वॉल्यूम आपको निकालना है, एंड डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 0.8। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 64/0.8, एंड आफ्टर कंप्यूटिंग इट वी विल गेट 64 × 10, ये हो गया 8, देन V इक्वल टू 80 सेंटीमीटर क्यूब। देन हेयर इट इज़ वॉल्यूम इक्वल टू 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर उसका मास और वॉल्यूम दिया हो। ओके, इसी तरह से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा कि अगर उसकी डेंसिटी एंड मास इज गिवन टू यू। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? Now the next topic is the relative density is defined as the ratio of the density of a substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करनी है, अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, सिंपली इट हैज़ नो यूनिट, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द रेशियो हेयर। उसकी हम रेशियो देख रहे हैं, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इफ़ टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल, सपोज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम ले लो और आयरन ले लो और उसको वेट कर लो। हमने ये देखा कि आयरन इज़ हैवियर देन एल्यूमिनियम, देन अगेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम ले लो और वुड ले लो, एंड आफ्टर कंपेयरिंग दिस हैवीनेस वी फाइंड दैट एल्यूमिनियम इज़ मच हैवियर देन वुड, देन इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन टू विच इज़ हैवियर देन व्हाट। तो कौन किससे ज़्यादा हैवी है, कौन नहीं है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम उनकी डेंसिटीज़ को वाटर से कंपेयर करते हैं, वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट, सपोज इफ़ एन ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ वुड, वो फ्लोट कर रहा है वाटर पे, तो इसका मतलब है कि वो वाटर से कम डेंसर है। एंड अगर रॉक सिंक कर जा रहा है वाटर से, तो इट मीन्स कि वो वाटर से ज़्यादा डेंसर है, इसलिए वो सिंक कर गया। तो एज अ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ एवरी सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हर एक सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो रिलेट होती है टू द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। देन relative density is the density of substance upon density of water at 4 degree Celsius. Now it has no unit. Okay, now how will you determine the relative density of a liquid? किसी भी relative density, किसी भी liquid की आप relative density कैसे निकालेंगे? In which technique we have to use the specific gravity bottle. ये आप देख रखे हैं, ये specific gravity आपकी बॉटल है, एंड हेयर विद द स्टॉपर विथ अ होल, और इसके माउथ पर एक स्टॉपर है एक होल के थ्रू। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज डिटरमाइंड यूजिंग द स्पेसिफिक बॉटल। ठीक है, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी कह सकते हैं और उसको RD बॉटल भी कह सकते हैं, यानी रिलेटिव डेंसिटी बॉटल भी कह सकते हैं। हमने पहले क्या किया, उसको खाली बॉटल ली। ठीक है, ये खाली बॉटल ले ली, उसको वेट कर लिया, और जो वेट किया सपोज उसका मास कितना आया, m1 आया। फिर हमने क्या किया, उसमें हमने वाटर डाल दिया, स्टॉपर के थ्रू हमने इसमें वाटर डाल दिया, और वाटर डालने के बाद जो टोटल मास आया, यानी मास ऑफ वाटर, तो बॉटल तो है ही है, साथ में मास ऑफ वाटर ऐड करके उसमें m2 टोटल मास आया। फिर हमने उस स्टॉपर से, होल से उस वाटर को निकाल दिया। ठीक है, फिर अगेन उस बॉटल में मस्टर्ड ऑयल को ऐड किया। ठीक है, उसको पोर किया, तो उस केस में m3 मास आया। तो मास ऑफ बॉटल वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर कितना होगा? तो सिंपली अगर हम फाइनल रीडिंग में से इनिशियल मास को हटा दें, m2 - m1 मास ऑफ वाटर निकल आएगा कि वाटर का मास क्या है। सिंपली उसके बाद फिर मस्टर्ड ऑयल का मास कितना निकलेगा, ये हमारा m3 में से अगर हम बॉटल के उसको माइनस कर दें,
ठीक है। अगर हम सिंपली M3 माइनस M1 कर दें, यानी कि मस्टर्ड ऑयल का जो मास है उससे मास ऑफ वाटर को माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मास इसका हो जा रहा है, ठीक है, मास ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल। देन अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल लें मस्टर्ड ऑयल की, तो क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, मास ऑफ अ सब्सटेंस हमको कितनी निकालनी है, मस्टर्ड ऑयल की, और मस्टर्ड ऑयल का क्या है, mass M3 minus M1, and to the ratio of the mass of the water or at 4 degree Celsius, then which is M2 minus M1। देखिए M2 minus M1 mass of water, तो सिंपली क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर की बात आ रही है, तो मास दोनों का आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, तो ये रिलेटिव डेंसिटी आपकी आ जाएगी। ओके, then it is all about the area, the density and the relative density of an substances. Okay, now this is all about today's video and for this session. Hope you all understood the concept. I'll be coming back again with the next topic. Till then, take care and bye bye.